اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ 19 اگست 634 عیسوی 19 جمادی الثانی 13 ہجری فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کی بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر آ گئے۔ چند ایک سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہ کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم رومی کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ سالار زرار بن الازور نے کہا، ان کے ساتھ کھیلو ابن ولید، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔ سالار شرابیل رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی سوچ ابن ولید، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کر دے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان کا دھیان پھیر دیتا ہوں۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس دور میں جب فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے ایک ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور، شرحبیل بن حسنہ اور امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سالاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے تاریخ ساز، تیغزن اور شہسوار پیدا کیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑیوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے اور برچھیوں سے برچھیاں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں فوجوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا، اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گرا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن الازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود، زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھی۔ زرار، شرحبیل اور عبد الرحمن رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے، رومیوں یہ لاشیں اٹھا لو، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومیوں یہ زمین تم پر تنگ ہو گئے ہیں۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا۔ ایک اور آدمی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی طرف گئے تو زرار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہ ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح سے مڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا لیکن اس کا دمخم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار اس کے ساتھ کھیلتے رہے۔ آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوہرا ہوا اور پھر لڑک کر نیچے آ پڑا۔ مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار، شرحبیل اور عبد الرحمن نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی تنزیہ
तंजिया ललकार का जवाब देता तो वो उन तीनों में से जिसके सामने होता उसे बर्छी या तलवार से खत्म कर देता। इस तरह उन्होंने चंद एक रूमियों को भी जख्मी किया और कत्ल भी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले तो तमाशा देखते रहे, फिर वो जोश में आ गए। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और आगे चले गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा, पीछे आ जाओ तुम तीनों, और मैदान में घोड़ा दौड़ाने लगे। उनके हाथ में बर्छी थी। मुर्खों ने उनकी ललकार के अल्फाज लिखे हैं, मैं इस्लाम का सुतून हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मैं खालिद बिन वलीद हूँ, मैं अपनी फौज का सिपाह सालार हूँ, मेरे मुकाबले में सिपाह सालार आए। वाक़िदी और तबरी ने लिखा है कि रूमी सालारों इजाजीर और कुलूस के दरमियान चपकलिश थी। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उनके मुकाबले में सिपाह सालार आए तो रूमी सालार अजाजीर ने अपने साथी सालार कुलूस की तरफ देखा और कहा कि कुलूस अपने आप को सिपाह सालार समझता है, मैं तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। कुलूस ये सुनकर खामोश रहा और मुकाबले के लिए आगे न बढ़ा। अजाजीर ने तंजिया कहा, हमारा सालार कुलूस डर गया है। उसने कुलूस को कुछ और ताने भी दिए। कुलूस का अंदाज बता रहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में हिचकिचा रहा है, लेकिन अजाजीर उस पर तानों के तीर चला रहा था। उनसे तंग आकर कुलूस ने घोड़ा आगे बढ़ाया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ गया। चार मौरखों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बयान किया है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में बर्छी थी। कुलूस उनकी तरफ आया तो उसका अंदाज हमले वाला नहीं था और उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ ऐसा इशारा किया था जैसे कोई बात करना चाहता हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके इशारे की परवाह न की। दुश्मन का दोस्ताना इशारा धोखा भी हो सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया और उस पर बर्छी का वार किया। कुलूस तजर्बाकार जंगजू था, उसने अपने आप को इस वार से साफ बचा लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे जाकर घोड़ा मोड़ा और कुलूस पर दूसरे हमले के लिए गए। कुलूस ने अब फिर उनका वार बेकार कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्छी फेंक दी। कुलूस ने देखा कि अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खाली हाथ आ रहे हैं तो उसने तलवार तानी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा उसकी तरफ लिया और घोड़े को ज्यादा आगे न जाने दिया। फौरन रोककर मोड़ा और कुलूस पर आए। कुलूस ने घोड़ा मोड़ा। वो बेहतर पोजीशन में आकर वार करना चाहता था, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े से गिरा दिया। उन्होंने घोड़े से कूदकर कुलूस को दबोच लिया। कुलूस जमीन पर पड़ा था, उसने उठने की जरा सी भी कोशिश न की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों को पुकारा कि आएं। 2-3 मुहाफिज दौड़े गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा कि कुलूस को कैदी बना लें। इस तरह कुलूस मरने से बच गया और कैदी बन गया। जब कुलूस को कैदी बनाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुहाफिज ले गए तो उसे पीछे ले जाने की बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रूमी उसे देखते रहें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रूमियों को ललकारते और उनका मजाक भी उड़ाते। कुलूस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे पर उनका एक मुहाफिज कुलूस का घोड़ा पकड़ लाया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार के जवाब में अब रूमी सालार अजाजीर सामने आया। सालार अजाजीर ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ललकारने की बजाय अपने साथी सालार कुलूस को ललकार कर ताना दिया, ओ कुलूस, देख ले अपना अंजाम बुज़दिल कमीने, तू मुझे रुसवा कर रहा था, अब मेरी तलवार का कमाल देख। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करने की बजाय घोड़ा आम चाल से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ाया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से तंजिया लहजे में कहा, अरबी भाई, मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, मेरे करीब आ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके तंज को समझते हुए कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरे करीब गया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। इजाजीर ने तलवार निकाली और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ समझता ही न हो। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कुछ दूर रुक गया। उसने कहा, अरबी भाई, तुझे मेरे मुकाबले में आने के लिए किसने कहा है? क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो तेरे साथी सालार तेरे बगैर क्या करेंगे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले रूमी, क्या तूने नहीं देखा कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? उन्हें अगर मेरी इजाजत होती तो ये तेरे इस सारे लश्कर को इसी तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया और ये जिंदगी तो उनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। इजाजीर ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, ओ बदकिस्मत अरबी, मैं इस मुल्क का जाबिर सालार हूँ, मैं तेरे लिए कहर हूँ, मैं फारसियों के लश्कर का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। इजाजीर ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ,
मेरा नाम इजाजीर है लेकिन मैं इजराइल हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, जिस मौत का तू फरिश्ता है वो मौत तुझे ढूंढ रही है, वो तुझे जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में पहुंच जाएगी। इजाजीर को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इस तंज पर भड़क उठना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को ठंडा रखा। उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मेरे अरबी भाई, तू कुलूस के साथ क्या सलूक कर रहा है जो तेरी कैद में है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, वो देख रूमी सालार, तेरा सालार बंधा हुआ है। इजाजीर का रवैया और लहजा और ज्यादा ठंडा हो गया। इजाजीर ने कहा, क्या वजह है कि तूने अभी तक उसे कत्ल नहीं किया? तू नहीं जानता कि रूमियों में अगर कोई सबसे ज्यादा अय्यार और शैतान है तो वो कुलूस है। तू उसे कत्ल क्यों नहीं करता? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कोई वजह नहीं, सिर्फ ये इरादा है कि तुम दोनों को इकट्ठा कत्ल करूंगा। उन दोनों रूमी सालारों की आपस में दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की किसी बात पर भड़कता ही नहीं था। इजाजीर ने दोस्ताना लहजे में कहा, मेरी एक बात पर कान धर अरबी सालार, अगर तू कुलूस को मेरे सामने कत्ल कर दे तो मैं तुझे 1000 दीनार, 10 कुबाएं रेशम की और आला नस्ल के 5 घोड़े दूंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ओ रूम के जाबिर सालार, ये सब तू मुझे कुलूस को कत्ल करने का इनाम दे रहा है। ये बता कि मेरे हाथों कत्ल होने से बचने के लिए तू मुझे क्या देगा? अपनी जान की कीमत बता दे। इजाजीर ने कहा, तू ही बता, क्या लेगा? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिज़िया, अगर नहीं तो इस्लाम कबूल कर ले। अब इजाजीर भड़का, बोला, आ अरब के बद्दू, अब मेरा वार देख, हम अजमत की तरफ जाते हैं, तू जिल्लत में जाता है, आ अपने आप को मेरे हाथों से कत्ल होने से बचा। उसने तलवार हवा में लहराई और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करने के लिए घोड़े को एड़ लगाई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उससे तेज निकले, उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। इजाजीर उनके करीब ही था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार का वार किया जो इजाजीर ने फुर्ती से एक तरफ हटकर बेकार कर दिया। उसके बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर तरफ से आकर उस रूमी सालार पर वार किए, मगर वो बड़ी फुर्ती से इधर उधर होकर वार बचाता रहा। उसने बाज वार अपनी तलवार पर रोके। मौर्रिख वाक़िदी ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और इजाजीर के मुकाबले को तफसील से बयान किया है। इजाजीर वार रोकता था और वार करता नहीं था। रूमी लश्कर से तो दादो तहसीन का शोर उठ ही रहा था। मुसलमानों ने भी इजाजीर की फुर्ती की दाद दी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ रोक लिया। इजाजीर ने कहा, ऐ अरब के सालार, क्या मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता? मैं तुझे जिंदा पकड़ूंगा और तुझसे ये शर्त मनवाऊंगा कि तू जिधर से आया है अपने लश्कर के साथ उधर ही चला जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भड़क कर कहा, खुदा की कसम, अब तू मेरे हाथों जिंदा गिरफ्तार होगा। ये कहकर वो उस पर झपटे। इजाजीर ने घोड़े को तेजी से मोड़ा और भाग निकला। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। इजाजीर ने घोड़ा तेज कर दिया और दोनों फौजों के दरमियान चक्कर में घोड़ा दौड़ाने लगा। अब मुसलमानों का लश्कर नारे लगाने लगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसके ताक़ुब में रहे। इजाजीर अपना घोड़ा जरा आहिस्ता कर लेता और जब खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस तक पहुँचते तो वो घोड़े को एड़ लगा देता। इस दौड़ और ताक़ुब में बहुत सा वक्त गुजर गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का घोड़ा सुस्त पड़ने लगा और उसका पसीना फूट आया। इजाजीर का घोड़ा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े से बेहतर और ज्यादा ताकतवर था। इजाजीर ने देख लिया कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का घोड़ा रह गया है। उसने अपना घोड़ा घुमाया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। इजाजीर ने ललकार कर कहा, ओ अरबी, तू समझता है कि मैं तेरे डर से भाग उठा हूँ? मैं तुझे कुछ देर और जिंदा देखना चाहता था। मैं तेरी रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उनका घोड़ा इजाजीर के घोड़े का साथ नहीं दे सकता, तो वो अपने घोड़े से कूद कर उतरे। उनके हाथ में तलवार थी। इजाजीर ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को आसान शिकार समझा और उन पर घोड़ा दौड़ा दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े रहे। इजाजीर करीब आया तो उसने घोड़े से झुककर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बचते नजर नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने सर नीचे करके वार को बेकार कर दिया। इजाजीर घोड़े को घुमा कर आया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पहले की तरह खड़े रहे। अब के फिर इजाजीर ने उन पर वार किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ ये कि झुककर अपने आप को बचा लिया, बल्कि दुश्मन के घोड़े की अगली टांगों पर ऐसी तलवार मारी कि घोड़े की एक टांग कट गई और दूसरे घोड़े के बोझ के नीचे दोहरी हो गई। घोड़ा गिरा और इजाजीर घोड़े के आगे जा पड़ा। वो बड़ी तेजी से उठा, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे पूरी तरह उठने न दिया। तलवार फेंककर उसे दबोच लिया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसे फिर उठाया और पहले से ज्यादा जोर से पटका। इजाजीर को इस खौफ ने बेजान कर दिया कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसे मार डालेंगे, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे घसीटा और इसी तरह अपने लश्कर की तरफ ले गए और कुलूस के पास जा खड़ा किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये ले, अपने दोस्त कुलूस से मिल।
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि इजाजीर को भी बांध दिया जाए। इधर अल्लाह ने दुश्मन के 2 सिपाह सालार मुसलमानों को दे दिए। उधर शोर उठा कि बाकी लश्कर आ गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने उसी लश्कर के इंतजार में थे और वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उस लश्कर के साथ तारीख इस्लाम के 2 अजीम सालार थे, अमर बिन अल-आस और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जरा सा भी वक्त जाया किए बगैर अपनी फौज को जंगी तरतीब में किया। 4000 जांबाज सवारों के दस्ते तलिया को अपनी कमान में रखा और हमले का हुक्म दे दिया। ये पहला मौका था कि मुसलमानों की तादाद दुश्मन के बराबर थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही थी। रूमियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन उनके अंदाज में जारहियत नहीं थी। वो दिफाई जंग लड़ रहे थे। उनका हौसला और जज्बा तो उसी एक वजह से टूट गया था कि उनके 2 सिपाह सालार मुसलमानों की कैद में थे और बाकी सालार इनफिरादी मुकाबलों में मारे जा चुके थे। उस रूमी फौज में पहली जंगों से भागे हुए आदमी भी थे। उन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। उन्होंने मुसलमानों को कहर और गजब से लड़ते और अपने साथियों को कटते देखा था। उन्होंने बेदिली से मुकाबला किया और पीछे हटते गए। उन्हें लड़ाने वाला कोई था ही नहीं। मुसलमानों ने उन्हें पसपाई से रोकने के लिए उनके अक़ब में जाने की कोशिश की, लेकिन पीछे दरख्तों से अटी हुई वादी थी जिसमें वो गायब होते जा रहे थे। उनकी पीठ के पीछे दमिश्क था जो कलाबंद शहर था। फासला 12 मील था। ये रूमियों के लिए एक कशिश थी, पनाह करीब ही थी। चुनाचे वो फर्दन फर्दन दरख्तों के झुंड में से गुजरते दमिश्क की तरफ भाग रहे थे। रूमी ऐसी बुरी तरह मुसलमानों के हाथों हलाक हो रहे थे कि मैदान जंग उनकी लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से अट गया। दौड़ते घोड़े और प्यादे उन्हें कुचल रहे थे। रूमियों ने अपने पहलुओं के दस्तों को आम पसपाई के लिए कह दिया। मुसलमानों ने ताकुब न किया, क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी नफरी को बचाना चाहते थे। वो बड़े कूच के थके हुए भी थे। बचे कुचे रूमी दमिश्क पहुंच गए और शहर के इर्द गिर्द दीवार ने उन्हें पनाह में ले लिया। मुसलमानों ने माल गनीमत इकट्ठा किया। औरतों ने जख्मियों को उठाया और उन्हें मरहम पट्टी के लिए पीछे ले गईं। शहीदों की लाशें एक जगह रखकर जनाजा पढ़ाया गया और उन्हें अलग अलग कब्रों में दफन किया गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात वहीं गुजारने का हुक्म दिया और तमाम सालारों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि दमिश्क के मुहासरे को कामयाब करने के लिए जरूरी होगा कि दमिश्क की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाए, ताकि दुश्मन अपने दमिश्क के दस्तों को कुमक और रसद न पहुंचा सके। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फहल के किले के करीब पहले ही एक घुड़सवार दस्ता छोड़ दिया था। वहां से इमदाद आने की तवक्को थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 घुड़सवार दस्ते 2 मकामात पर भेजे। उनके लिए हुक्म था कि उन रास्तों से कुमक आए तो उस पर हमला कर दें। 20 अगस्त 634 ईस्वी 20 जमादिउल आखिर 13 हिजरी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दमिश्क पहुंचकर उस शहर को मुहासरे में ले लिया। दमिश्क के अंदर जो रूमी फौज थी उसकी तादाद 16,000 के लगभग थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में 20,000 मुजाहिदीन थे। शहीदों और शहीद जख्मियों की वजह से तादाद इतनी कम रह गई थी। कुछ दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर रूमियों की कुमक को रोकने के लिए भेज दिए गए। ये वजह थी कि मुजाहिदीन की तादाद 20,000 रह गई थी। दमिश्क बड़ा शहर था। उसके 6 दरवाजे थे और हर दरवाजे का नाम था बाब शर्क, बाब तूमा, बाब हाबिया, बाब फरादीस, बाब केसान और बाब सगीर। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर दरवाजे के सामने 2-2, 3-3 हजार नफरी के दस्ते खड़े कर दिए। हर दरवाजे के लिए एक सालार मुकर्रर किया। राफे बिन उमैरा, अमर बिन अल-आस, शराबील बिन हसना, अबू उबैदा, यजीद बिन अबी सफियान। यजीद बिन अबी सफियान की जिम्मेदारी में 2 दरवाजे दे दिए गए। ज़र्रार बिन अल-अज़वर को मुंतखब सवारों का 2000 नफरी का दस्ता इस मकसद के लिए दे दिया गया कि वो किले के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहें और अगर रूमी बाहर आकर किसी दस्ते पर हमला करें तो ज़र्रार उसकी मदद को पहुंचे। शहर की दीवार पर रूमी कमाने और बर्छियां लिए खड़े थे। उनमें दूसरे सालारों के अलावा दमिश्क के दिफा का जिम्मेदार सालार तूमा भी था, जो शहनशाह हरकल का दामाद भी था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि रूमियों के दोनों कैदी सालारों इजाजीर और कुलूस को आगे लाया जाए। दोनों बंधे हुए लाए गए। उन्हें दीवार के इतना करीब ले जाया गया जहां वो दीवार पर खड़े रूमियों को नजर आ सकते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों से बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों इस्लाम कबूल करोगे? दोनों ने इकट्ठे जवाब दिया, नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़र्रार बिन अल-अज़वर को आगे बुलाया और कहा कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दे। ज़र्रार ने तलवार निकाली और दोनों की गर्दन पर एक एक वार किया। दोनों के सर जमीन पर जा पड़े। उनके धड़ गिरे, तड़पे और साकित हो गए। दीवार से तीरों की बौछार आई।
लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और जर्रार उनकी जद से निकल आए। दमिश्क का मुहासरा रूमियों की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या बल्कि हादसा और अलमिया था, और मुसलमानों की तारीख का भी ये बहुत बड़ा और बाज़ तारीख नवीसों के लिए हैरान कुन वाक़या था। हैरान कुन तो रूमियों के लिए भी था, क्योंकि रूम की फौज उस दौर की बेहतरीन फौज और नाकाबिल तस्खीर जंगी ताकत समझी जाती थी। रूमी फौज दहशत और तबाही का दूसरा नाम था। उस फौज ने हर मैदान में फतह पाई। किसरा की फौज भी उससे कम न थी, लेकिन रूमी फौज ने उसे भी शिकस्त देकर अलग बिठा दिया था। लेकिन इतनी दूर से आए हुए और इतने थोड़े से मुसलमान इसी रूमी फौज को शिकस्त पर शिकस्त दिए चले जा रहे थे, और उन्होंने दमिश्क को मुहासरे में ले लिया था, जो रूमियों का बड़ा ही अहम और कीमती शहर था। कैसर रूम ने तो सोचा भी न था कि दुनिया की कोई ताकत उसकी बेहतरीन और दहशतनाक फौज को उस मकाम पर ले आएगी कि उसके लिए रूमियों की रिवायात और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ मुहाल हो जाएगा। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें।